ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਛੂ ਸਕਤੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ। ਗੁਰਮੀਤ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 20 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਪੰਪ 'ਤੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ट्रेनिंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई? वैसे तो नाइट के लिए है नहीं, गर्ल्स के लिए तो बस डे की है, बट फिर भी चैलेंजिंग है। कुछ दिनों तक, कुछ दिनों के लिए लगेगा कि हाँ कैसे करेंगे ये जॉब, हिचकिचाहट होगी, डर लगेगा, बट अगर हम अपने अंदर अपने थोड़ा जज्बा रखेंगे किसी चीज़ को करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25,000 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ बनना है तो ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ भी मिले, ਕੰਮ करना ज़रूरी है। हाँ ज़रूर, ये बात सही है कि पेरेंट्स चाहते हैं अगर लड़की जॉब कर रही है तो वो अच्छी जॉब करे, कोई ऐसी जॉब करे जहाँ पर सैलरी भी बहुत अच्छी हो। तो ये बात है, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब छोटी या बड़ी होती है। अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उससे पहले लगन से करना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है, बट छोटी बड़ी जॉब को देख कर नहीं। अगर हमें इस टाइम पे इस कोविड-19 में अगर हमें जॉब मिल रही है, अच्छी बात है, क्योंकि आजकल के टाइम पे देखा जा रहा है कि सबकी जॉब जा ही रही है, किसी को नहीं मिल रही। लोगों को लोन भरना है या ये सब चीज़ें करनी है, जो भी उन्होंने लोन्स वगैरह लिए हैं, करने हैं, भरने हैं, तो वो नहीं भर पा रहे क्योंकि उनकी जॉब चली गई है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी देख लो लोगों की हालत कितनी ख़राब हो गई है, और प्राइवेट सेक्टर में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इसमें हम इतने खुशनसीब है कि हमें ये जॉब मिल रही है, इस टाइम पे हमें जॉब मिल रही है, हम अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं आगे जाकर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? नहीं, ऐसा मुझे अभी तक तो मेरे मन में बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया, क्योंकि बिकॉज ये जॉब जो मिली है हमें अंडर पुलिस की मिली है, तो मेरे को तो बहुत खुशी हुई है कि अगर ये जॉब गवर्नमेंट नहीं भी है, अगर है भी है तब भी मुझे बहुत खुशी है कि क्योंकि अंडर पुलिस के, और जैसे DIG साहब ने बाकी कहा कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे जानी चाहिए, मतलब कि हमें खुद को होना चाहिए, अपने मन में होना चाहिए कि जॉब आज के टाइम पे लोगों की जा रही है और हमें मिल रही है। तो सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमें जॉब मिल गई, और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें वहाँ पर हर फैसिलिटी मिलेगी। जैसे कि देखते हैं कि कहीं ये मेन पर्पज़ इस जॉब को करने का ये है कि इसमें कोई मेंटली मतलब हराश नहीं होना हमें, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि आप यहाँ पर आ रहे हो, अपना काम कर रहे हो और यहाँ से फ्री होकर जा रहे हो, कोई मतलब मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं है। कई जॉब ऐसी होती है कि आप सुबह ऑफिस आ रहे हो, सारा काम कर रहे हो, फिर अपने साथ घर पे स्ट्रेस लेके जा रहे हो, बट इस काम में हमें ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेस हमारे साथ बिल्कुल घर जाना नहीं है, बट थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि 8-10 घंटे खड़े होना मेनली गर्ल्स के लिए इतना मतलब नहीं हो पाता, बट ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, बट करते करते मैनेज हो जाएगा अपने आप। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਬੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਐਸਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ करना है? हाँ जी सर, हमें ट्रेनिंग दी गई है कि हमें एक तो नेगेटिव थिंकिंग लेके आना, किसी को नेगेटिव बोलना। अगर कोई हमें कुछ बोलता है तो हमें अपने सुपरवाइज़र के पास जाना है, उनसे बात करानी है, लेकिन हमें खुद से कुछ नहीं बोलना, हमें सिर्फ उनको अच्छे से ट्रीट करना है। हमें ये ट्रेनिंग दी गई है। लेकिन ऐसे अगर कुछ भी ऐसे ही घटना हो जाती है तो हमें सीधा अपने सुपरवाइज़र को बुलाना है और उनसे उनकी बात करवानी है। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਡੀਜੀਪੀ ਸੰਜੇ ਬੇਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਲਗਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। बच्चियाँ होती, पुलिस अफसर्स की लड़कियां भी मेरे लिए उतनी ज़रूरी हैं जितने कि आम नागरिकों की। तो इसमें कुछ पुलिस अफसरों की बच्चियां भी हैं, उनकी भी ज़रूरतें हैं, और विक्टिम्स ऑफ क्राइम, क्योंकि उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो वे भी हैं। और जो थानों में हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो ट्रेनिंग कराई थी, कुछ बच्चियां उनसे भी हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये तीनों वर्ग के लोगों को, बच्चियों को आज यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ मिलके एक रोज़गार का अवसर मिला है। और इस अवसर से मुझे उम्मीद है कि इनकी ज़िंदगी में और बढ़ोतरी, विकास और खुशहाली आएगी। ये इसका पहला कदम है। तो आगे इनकी मेहनत है, इनकी लगन है। सर कुल कितने जो है लड़कियों को आज रोजगार दिया गया है? आज हमने 35 लड़कियों को दिया है, और ये चंडीगढ़ में जगह जगह जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप हैं उस पे जो पेट्रोल भरने वाले अटेंडेंट्स होते हैं उनकी जॉब है। और इनको यही सिखाया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई रियायत नहीं ये उम्मीद करेंगे, क्योंकि ये महिला हैं। जो ड्यूटी औरों की लगती है वो इनकी भी लगेगी। और मुझे उम्मीद है कि ये औरों से ज़्यादा अच्छा कार्य करेंगे, और औरों के लिए भी ये एक उदाहरण बनेंगी, हीरो बनेंगी कि बेटियां और लड़कियां आकाश सच में छू सकती। चंडीगढ़ तो कैमरामैन प्रवीण पांडे के नाल अंकुश महाजन, दैनिक सवेरा टीवी। क्या आप है परेशान? क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा? तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर हो करियर से रिलेटेड, या फिर हो लव रिलेशनशिप। आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की? स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाएं। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।